भी विद्यार्थी नेम, एनरोलमेंट नंबर और अपने कोर्स कोड के साथ चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस लगाएंगे। अभिनंदन है मैम, प्लीज स्टार्ट। Good morning, everyone. So, this week we are going to pursue another case study that seems to be a hypothetical case of Tanveer, and we will discuss what all steps we can take while giving a counseling or guiding the student as well as his parents so that the boy Tanveer, who's 17-year-old, can have a direction in which he can pursue his career. We will also see what all things right away he's going through and how counseling can help him to get back to his or gear up his path. I hope you all have this case that is about a Tanveer who's a 17-year-old boy, and he was brought to the counselor by his mother. So here the boy Tanveer is not self-referred but referred by his mother. The first thing is the referral source, which is important before you begin with the counseling. And we know that his mother has brought him to you. Let's suppose you, as a counselor, is going to deal up with this case. So his mother wants the counselor to guide him, and maybe he nowadays, like 17-year-old boy, age says a lot of things, right? He's on the verge of, I guess, being distracted. And this is the time when you can actually work on your skills, abilities, and then I think the rest of the years can be smoothened by the right direction. So this boy has completed his class 12th with average marks, not a topper, but average. I mean, good enough. He's an intelligent and hardworking student. However, for the last 2 years, he has become disinterested in his studies. So राइट अवे अभी जो आप ये केस देख रहे हैं, आप इसको एज अ काउंसलर डील करेंगे, तो आपके जो भी पॉइंटर्स होंगे आप उसको साइड बाय साइड लिख सकते हैं, जो भी आपकी कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी हो रही है. बिकॉज आई एम गोइंग टू आस्क यू वंस आई हैव read this case, like how will you begin with it? So the case says that he is an intelligent and hardworking student, but you see, he got average marks in his 12th standard. And also from the last 2 years, he has become disinterested in his studies. That's very normal, I guess. एक एज आता है बच्चों में जब उनको लगता है कि what to do next, right? He's thoroughly dependent upon luck and fortune. So the another important point here is the control. He's not controlled by his self, but more focused or dependent upon luck or fortune, or maybe the role of others in his life. Presently, he has been following someone on social media. Now, here comes the role of social media, that he has been following someone on social media and started to meditate for long hours each day. Not a bad thing that he's going for. The duration of meditation is somewhere between 5 to 6 hours every day. Though completely disinterested in studies, he has applied in various colleges and university of his city for an undergraduate program. He wants to pursue journalism, but his father wants him to pursue law. Why? Because his father is a lawyer. Now, the mother has come to you for counseling and guidance for Tanveer because, of course, now is the time. She's worried because he is showing complete disinterest in studies, and being a mother, he is worried कि
कहीं इस डिस्ट्रैक्शन से, डिसइंटरेस्ट से बच्चे का करियर खराब ना हो जाए. So, can anyone initiate to tell me, like, एक क्विक ब्रीफ समरी अगर आप बताना चाहें अभी फिलहाल जो हमने ये केस रीड किया है, your own perspective, like how will you put your feet forward if you have to tell me something, this is the thing that we need to work upon. I mean, the first thing that comes to your mind. Anyone can take the initiative to answer my question. Good morning, ma'am. Kriti. Hi, Kriti. How are you? Fine, ma'am. How are you, ma'am? I'm good, thank you. So, the case history that has been shared by you, I believe that if I have to meet this individual for the very first time, then I would like to understand that he is a very intelligent and a hardworking person, and at the same Right, time, he has applied also for the college for his admission in that college. Right. right. So there is something which is distracting him. Can be the possibility, ma'am. Social media is the one which is not disturbing him. कुछ और Hmm. है जो कि इसे डिस्टर्ब कर रहा है. उसको समझने के लिए I will try to first interact with this individual कि उसकी likings क्या है, उसकी dislikings क्या है, या उसका सोच जो वो उसके अंदर इतनी इंटेलिजेंस है सब्जेक्ट्स को लेकर या अपनी स्टडीज को लेकर, वो कैसे जी. उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट है इन सब चीजों में कि फिर भी वो अपने कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहा है. तो मैं Hmm. पहले उसके बारे में उससे बात करूंगी, उसकी सक्सेस स्टोरीज के बारे में बात करूंगी, फिर उसके बाद मैं इस पर आऊंगी कि व्हाट हैपेंस, कि क्या हुआ जिसकी वजह से सडनली यू आर शोइंग अ डिप परफॉर्मेंस इन योर academics. So I would like to go in this manner with this particular individual. Is it right, ma'am? Absolutely correct. I'm Okay. really happy that you have got the point where we want to hit right away. Okay. Absolutely correct. Absolutely. And I'm really happy कि आप लोग कितना जल्दी connect कर जाते हो चीजों के साथ. I mean, this Thank you, is sir. one thing which is a very important skill कह लीजिए, tool कह लिए, जो एक counselor के पास होना चाहिए. I mean, rather than coming up with the conclusion, you have actual में आपने वो चीजें पकड़ी हैं जो generally शायद एक ऑर्डिनरी पर्सन को समझना आए और वो यही सोचे सोशल मीडिया रीजन होगा या बच्चे को Okay. पता ही नहीं है. तो बिल्कुल सही आपने कहा है. एनीवन Okay. एल्स कुछ ऐड करना चाहेगा कोई? Yes, ma'am. Good मैम morning, ma'am. We can add later on what Kriti ma'am had said कि हाँ जी, we can add the family therapy thing also, just to understand कि ये चल क्या रहा है सारा कुछ. वेरी इंपॉर्टेंट. करेक्ट, करेक्ट. वी नीड टू टॉक टू द पेरेंट्स बिकॉज मदर आई हैं साथ में लेके एज अ रेफरल सोर्स. मदर है हमारी, तो यहाँ पे हमें मदर फादर अगर जरूरत पड़े तो हम उनसे उनकी पूरी फैमिली के साथ जिसके साथ बच्चे का ज्यादा कनेक्शन है हम उनसे भी बात कर सकते हैं. एंड डेफिनेटली हमें उनके फैमिली हिस्ट्री को लेना ही पड़ेगा कंसिडरेशन में. Another thing, ma'am, which I would like to add here is that very well said by my fellow batchmate. That is, of course, family therapy is really going to work out very well in this. What more we can do that once this interaction with the family and with this respective individual has been done, then it will be very, very easy to find out. वो अपने आप ही आपको एक फ्लो में बताता जाएगा कि उसके साथ क्या ऐसा हुआ सडनली जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस डिप हो गई. Exactly. मतलब वो इतना स्मूथ हो जाएगा जिसकी वजह से वो मतलब जो चीज शायद वो रिवील नहीं कर पा रहा था वो बातों बातों में रिवील कर जाएगा. बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही. राइट. गुरप्रीत जी आगे मॉर्निंग कुछ मैम. कहना चाहते थे? जी मैम जी. आई Gurpreet. Ma'am, I just wanted to add, like, since it's already been told he is interested in journalism, right? So maybe Right. we need to have a counseling of parents as well, because it may be the case like his father may have been imposing the lawyer to go for the uh, to be a lawyer, because since he is himself a lawyer, and since he's already a intelligent boy, he can actually have a good interest in journalism, and we need to dig out the details regarding that so that we can actually encourage him for going into what he is actually interested in, rather than being heading for a security, which because his father is a lawyer and you are supposed to be a lawyer. Correct. I agree. I totally agree with this thing.
See, I believe life, is just like a mathematics. And to work out your life, you need formulas that actually suit your uniqueness. And same is true for your career also. That's why we say that एक well planned career जो है, it is instrumental in a very happy and satisfied life लाने के लिए. But Exactly, then ma'am. यदि जी जी Imposition, I guess, works in a very negative way. When negative, you are right. when you're asked to pursue something you are actually disinterested in, that may be the core reason. Because we जी may put it on social media or meditation or whatever he's following, pursuing things, but the basic reason may lie that the parents are imposing something which he is not at all interested in. And since he's interested in journalism, it is quite a contrast to the lawyership, I guess. career, right. I believe parents, they need to be facilitators and not just influencing their children's Exactly. choices. Yeah. और यही दिक्कत आती है क्योंकि उनको लगता है एज पेरेंट्स दे वांट के बच्चा बेस्ट करियर चूज करे, बट क्योंकि दे हैव गॉन थ्रू द प्रोसेस, सो उनको लगता है कि दे कैन help their children from making mistakes and selecting a career. But ma'am, the But parameters for best, sorry to interrupt, but parameters of best in the eyes of parents are actually security and, the prosperity. But the real stuff may be the contentment with the child itself. Like he's interested in journalism, he may earn less in that, but he's interested and he may enjoy and be more contented in that career. And that is बिल्कुल what he actually wants something to endorse and acknowledge. जी राइट Thank you. बिल्कुल सही है. एनीवन एल्स कुछ ऐड करना चाहें या कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव आप शेयर करना चाहें? एनीवन एल्स? All right. So, I'm going to discuss few factors that are very important, and they define the importance of the role of parents in child development, right? As we know that here also we are talking about बच्चे का career, aptitude आप बात कर सकते हैं, and we know aptitude is actually the mirror of a child's personality, strengths and weaknesses. So, if a strategically designed aptitude test can help this boy, right, where we can get to know a lot of information regarding his career selection, so that will be the appropriate way to begin with. So we cannot jump to the conclusion because it is a process, as we say, counseling is a process. So मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे से वेल एक्सप्लेन्ड केस है ये, जिसमें आपने बहुत अच्छे अच्छे अपने पॉइंट्स जॉट करे हैं. सो द फर्स्ट थिंग टू गो फॉर इज कि जैसे इफ mother is there and she's telling this boy is showing lack of concentration, really worried about his career, but he seems to be interested in social media and performing meditation, going for this for 5 to 6 hours. So the first thing is rapport building. That's the basic foundation of our counseling process. I guess first thing, जैसे कृति ने बोला कि आप individually with the boy, you can have a conversation, but then we have to realize that to begin with this conversation, we need to work upon the rapport building process. So, बहुत ही light note पे आप conversation start कर सकते हैं, right? And then, just to have an idea, आप कोई भी small scale एक aptitude test बॉय के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे आपको भी एक एज मिल सके कि जैसे कि हमारे पास ये लिखा हुआ आया है कि he wants to pursue journalism. So there is an interest inventory. I mean, there are different interest inventories, but then you must have a collection जहाँ पे आप वो टूल यूज कर सकते हैं to find out कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है. Like we have vocational interest record or an aptitude scale that use कर सकते हैं, differential aptitude testing to have an idea, right? Then along with it, because हमने जब DSM को discuss किया था, although it is not a severe case, but then we have to rule out if by any chance कोई ऐसी possibility निकलती है. जैसे कि हमें उन्होंने ये बताया है कि lack of concentration, it seems that's totally fine. Lack of concentration है, social media पे वो focused है काफी हद तक, काफी देर से, तो आप
उसको कंसिडर कर सकते हैं कि वो कितने नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड कर रहा है. Like he has been following someone on social media and started to meditate for long hours each day. Meditation long hours के लिए कर रहा है, alright. But then वो social media पे अपना कितना time spend कर रहा है. अगर आप चाहें तो आप कोई ऐसा internet tool as a test आप utilize कर सकते हैं बच्चे पे before we come up with our own explanation. So during this rapport building process, or once you believe that the boy is having trust, you can ask him or her to discuss about his personal life in a way कि family में उसका birth order क्या है. आप family से भी पूछ सकते हैं क्योंकि आप case study में already पढ़ चुके हैं. mental status एक examination form होता है जिसको आप fill कर सकते हैं, knowing all the current past history for this particular boy. Then if required aptitude test यूज कर सकते हैं. एंड देन अगर बच्चा जो है वो जर्नलिज्म में इंटरेस्टेड है, सो एंड ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वो जर्नलिज्म के लिए इफ ही इज शेयरिंग, बेसिकली उसका शेयर करना बहुत जरूरी है कि वो जर्नलिज्म में जाना चाहता है और वो ये सारी बात आपके आगे रख रहा है, तो फिर आप यू कैन हेल्प हिम फाइंडिंग आउट दी कोर्सेज जो कि उसके उस डिजाइन करियर को आगे फर्दर लेके जा सकते हैं. बट देन फॉर दैट we need to talk to his parents also, right? And at the same time, because he is interested in journalism, I agree, but we cannot forget this, that a child is very easily swayed by the peer pressure in choosing a career. Okay, let's suppose the majority is opting for journalism and I would want to go for the same thing. ऐसे भी केसेस आते हैं जब आप एज अ करियर काउंसलर किसी बच्चे को काउंसिल करते हैं तो वो कहते हैं मेरे पूरा क्लास एक पर्टिकुलर कॉज के लिए जा रहा है, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में जा रहा है, तो इवन आई वुड वांट टू गो फॉर दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उसके आगे प्रोस्पेक्ट्स क्या है. तो वहां पेरेंट्स बीच में इंटरवीन करते हैं कि बच्चे को मालूम ही नहीं है कि जी उसके प्रोस्पेक्ट्स क्या होंगे. वी नो बच्चा खुश रहेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे जो हमारा सिनेरियो है वो ये है कि 4 पैसे हाथ में भी आए और कल को बच्चा रिग्रेट ना करे, क्योंकि पेरेंट्स को ये लगता होता है कि अभी बच्चा खुद के लिए डिसीजन सही नहीं ले सकता है. और इफ यू एज अ काउंसलर कुछ चीजें आपको इजीली समझ जब आनी शुरू हो जाती है कि जो बच्चा है वो पीयर प्रेशर के अंडर आकर ये बोल रहा है, अदरवाइज उसका इसके सिर्फ उसके कारण उसने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रखी है, तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि बिफोर यू कम अप विद एनी कंक्लूजन वी कैन गो फॉर अ सर्टेन काइंड ऑफ अ टेस्ट और एन इन्वेंट्री वेयर यू कैन गेट टू नो कि बच्चे का रियल इंटरेस्ट जो है वो किन चीजों में है. Then the scope you can discuss with the boy, right? So that अगर उसके माइंड में कुछ स्कोप को लेके कोई और चीज नजर आती है तो बच्चा भी डिस्कस करेगा कि मुझे बस ये मालूम है. जैसे आजकल एक ट्रेंड है चल रहा, बाहर जाना है, फॉरेन कंट्री में जाना है, यहाँ कुछ नहीं रखा है, फॉरेन में जाएंगे, वहां हम विल मिंट मनी लाइक एनीथिंग एंड फॉर आई हैव टू गो. एंड देन व्हाई डू यू वांट टू गो? एवरीबडी इन माय क्लास इज गोइंग ना, तो मैं भी जाऊंगा. सो साइमल्टेनियसली मुझे लगता है आप क्या कर सकते हैं कि इफ यू आर कंडक्टिंग वन सेशन विद दैट बॉय, बट एट द सेम टाइम आप कुछ कुछ इंफॉर्मेशन उनके पेरेंट्स से भी कलेक्ट कर सकते हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं उनका व्यू पॉइंट जानने के लिए. सो देयर आर सर्टेन डूज एंड डोंट्स आई बिलीव जो आप in order to understand the role of parents in child life, अगर पेरेंट्स को आपको काउंसिल करना है, जैसे कि किसी ने कहा था अभी हमारे में से कि कोई फैमिली थेरेपी दे सकता है, तो व्हाट इज द बेस्ट थिंग, हाउ टू गो फॉर इट? So they can, as a counselor, you as a counselor can counsel the parents that they have to evaluate their child's aptitude, the strengths and weaknesses. You need to sit and talk. जरूरी नहीं है आप लॉयर हैं या आप डॉक्टर हैं तो आपका बच्चा भी वही प्रोफेशन चूज करे. हो सकता है वो टैटू आर्टिस्ट बनना चाहता हो, लेकिन आपको वो एक जो कहते हैं टैगिंग स्टिग्मेटाइजेशन, या यू फील के there's nothing in being a tattoo artist, but then you have to explore the creativity skills जिसकी बच्चा बात कर रहा है. Then you have to, as a parent, they need to help their children in discovering their own passion. बच्चे का पैशन क्या है उसको अंडरस्टैंड करें. Yes, of course, they can motivate in pursuing his or her passion. Then
बिफोर दे कम अप टू द काउंसलर, मुझे लगता है मैं कहीं ना कहीं रिफ्यूट नहीं कर रही हूँ पेरेंट्स को, बट एजुकेटेड पेरेंट्स जो हैं वो हम उनसे इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अपने बच्चों के लिए वो इतना टाइम निकाल सकें that they can provide the first hand information to their children about the, I mean, regarding all aspects of the career. नॉट ऑल, मतलब ये नहीं है कि 360 डिग्री जो मैगजीन है वो पूरा पढ़कर आप उनको बताएं, बट वेन यू गेट टू नो कि बच्चा ये सब चीजें मेरे से बात करता है और उसका मुझे लग रहा है कि इस पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली वी नीड टू डिस्कस द करियर प्रोस्पेक्ट्स और कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं दैट द पर्सन और चाइल्ड कैन गो फॉर, एंड आई थिंक इनकरेजमेंट तो देनी ही देनी चाहिए। तो मुझे ऐसे लगता है इस केस स्टडी में भी बच्चे से ज्यादा फर्स्टली पेरेंट्स को काउंसिल करना जरूरी है कि बच्चे की क्लैरिटी को तो हम कंसिडर कर ही रहे हैं, बट पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू अंडरस्टैंड करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। देन हाउ डू वी गेट टू नो दैट योर चाइल्ड इज फॉलोइंग प्रे टू पीयर प्रेशर और मे बी दी हर्ड मेंटालिटी कि वो सारे कर रहे हैं तो मैंने भी करना है? तो उसमें भी मुझे लगता है फिर वही बात है कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों से बात करें, उनके आइडियाज को कंसिडर करें, एंड इट्स टोटली फाइन अगर बच्चे को डिसीजन लेना नहीं आ रहा है, रादर देन सेइंग दिस तुम बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता है, रादर हम उनको कुछ एनकरेजिंग वर्ड्स यूज करें कि आई एम रियली हैप्पी कि तुम ये सोच रखते हो, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि आप बेटा अपने लिए सोच रहे हो, इट्स वेरी गुड। देन ऑफ कोर्स दे कैन सीक आउट द प्रोफेशनल हेल्प, जैसे कि मदर आई है एक काउंसलर के पास टू सीक आउट द हेल्प, ताकि बच्चा जो मुझे जो लग रहा है कि वो जो डिसइंटरेस्ट दिखा रहा है वो बेसिकली इसीलिए है कि वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है कि जो चीज मैं करना चाहता हूँ वो चाहे ना भी करना चाहता हो, लेकिन कभी कभार जो पेरेंट्स का प्रेशर हो जाता है फिर बच्चा भी एडमेंट हो जाता है कि मैं नहीं करूंगा, मैं लॉ में नहीं जाना चाहता हूँ, जस्ट बिकॉज माई फादर इज सेइंग आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। सो moreover, I believe until and unless you're not sure about something, I mean, it's okay if as a parent you can take your time, you can research, you can take some professional help before you jump up with saying this that no, you will get into this law profession only. तो आप पेरेंट्स एज अ पेरेंट आप अपने एंड पे भी इस पे वर्क कर सकते हैं, देयर इज नो हार्म इन टू दिस, एंड देन डू नॉट अलाउ अदर पीपल, यू सी, ऑफ कोर्स बात सबसे करें, डिस्कशन करें, बट वो जो इन्फ्लुएंस है बच्चे के करियर सिलेक्शन को लेके वो मुझे लगता है बच्चे का ही होना चाहिए। एज अ पेरेंट, एज अ फ्रेंड, एज अ रिलेटिव, ऑफ कोर्स आप उनको चॉइसेस दे सकते हैं, बट फाइनली तो चूज बच्चे को ही करना है। सो यू एज अ काउंसलर आप कुछ अपने, बिफोर यू स्टार्ट विद दिस केस, आप कुछ अपने पॉइंटर्स बना सकते हैं। आप टूल्स, जैसे मैंने आपको बोला कि डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट है, स्कोलास्टिक एबिलिटी टेस्ट है, वोकेशनल इंटरेस्ट रिकॉर्ड है, VIR इसको बोलते हैं, कुछ ऐसे टूल्स की कलेक्शन आप अपने पास रख सकते हैं। आपके पास ये केस है, अगर हाइपोथेटिकल करना है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि ये हाइपोथेटिकल केस है, तो यू हैव अ चॉइस टू गो फॉर और अगेंस्ट, और मैं आपको ये कहूंगी कि आप दोनों ही ऑप्शंस लेकर चलें, जहां आप रिबटल भी कर रहे हैं कि बच्चा जो है वो सही है, और आप एक पेरेंट का एस्पेक्ट ले सकते हैं, एक बच्चे का ले सकते हैं, और एज अ काउंसलर आप दोनों चीजें इस केस में बता सकते हैं, क्योंकि हाइपोथेटिकल है, सो देयर इज नो हार्म कि अगर आप दोनों साइड्स ऑफ द कॉइन यू आर कंसिडरिंग। देन व्हाट एल्स यू वांट, आप बताइए प्लीज, और कुछ अगर इस पे डिस्कस करना है या आपको लगता है कोई और चीज आपके माइंड में आ रही है कि हम। मैम इसमें मैं एक चीज समझना चाहूंगी कि जब हम इसकी वो लिखना शुरू करेंगे तो जी, उसका सीक्वेंस क्या फॉलो करें? अगर तो कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस आपको दिया गया है प्रैक्टिकम बुक में, हाँ जी। क्या दिया है आपको, ये मेरे को जानना है पहले कि कुछ ऐसा बात हुआ है कि आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट मिलेगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ सर मैम, ऑलराइट, क्योंकि तो इफ यू रिमेम्बर, बोलिए प्लीज। प्रैक्टिकल बुक में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, और अगर हम प्रैक्टिकल ऑनलाइन गाइडलाइंस जो हमारे पास आई हैं उसमें सिर्फ ये केस स्टडी मेंशन है,
ऐसा उसके नीचे की कोई हमें प्रोसीजर क्या फॉलो करना है वैसा कुछ मेंशनिंग नहीं हुआ है। ऑलराइट, कोई बात नहीं, हम ऐसा कर सकते हैं जो हमने लास्ट वीक अपना केस हिस्ट्री डिस्कस किया था, यू रिमेम्बर कि केस या हिस्ट्री मेथड में हाउ टू गो अबाउट इट, हाउ टू स्टार्ट विद इट। जी जी तो जी आप पहले उसी का फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी सिवियर केस उस हिसाब से नहीं लग रहा है जो हम पढ़ पा रहे हैं, जो वर्ड्स हैं वहां लिखे हुए। तो हम्म, उसमें ऑफ कोर्स हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में हम सिम्टम्स की बात तो नहीं कर रहे हैं, सिंपल ये है, इंडिकेशन है कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन है। या तो टू डेफिनेटली बिगिन विद आप प्रेजेंट साइंस पे बात कर सकते हैं, बच्चे का जो है करंट ओके स्टेटस क्या है, कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, स्पेंडिंग मैक्सिमम आवर्स ऑन सोशल मीडिया। हम्म आप उसका करंट स्टेटस बता के फिर यू कैन हम्म स्टार्ट विद सेशन 1। ओके Session 1, you can give a heading as rapport building, ओके and that is with the boy. So you are ओके counseling, you are interviewing the boy on the very first day. So एक जैसे dialogue delivery होता है ना, you as a investigator कॉन्सेप्ट and you have a client, right, or counselor, and then you have a client. So initially you as an investigator, आप किस तरह से उससे बात करें जी। एंड देन वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है, बिकॉज आई एम फ्रॉम अ क्लिनिकल बैकग्राउंड, तो मैं मैक्सिमम क्लिनिकल इंटरव्यूज पे फोकस करती हूँ। कोशिश कीजिएगा कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस रखें जब आप डायलॉग डिलीवरी भी कर रहे हैं, सो दैट राइट बच्चे के पास मैक्सिमम हो बताने के लिए, राइट मैम राइट है ना। ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस ना हो जो येस और नो में ही खत्म हो रहे हो। सो यू कैन जस्ट बिगिन विद हाउ वाज योर डे, और हाउ इज द वेदर टुडे। सो आज आप क्या कर रहे थे, या क्या रूटीन था, वुड यू वांट टू टेल अस समथिंग मोर अबाउट इट। सो दैट शुड बी द स्टाइल ऑफ, लाइक जो आप प्रोबिंग भी कर रहे हैं। एंड अवॉइड कन्फ्रंटेशन, बिकॉज बॉय 17 year old, सो वी ऑल नो कि मैम बच्चा, या When हाँ we जी say प्लीज। confrontation, there is Confrontation, yes. yeah it sometimes it happens that there is a very thin line Mm-hmm. between not confronting and confronting. जी जी जी। So how should as a counselor, how should Uh-huh. on what basis I will ensure ki that as a counselor Kriti is not confronting the client. Um, okay, I'll give you an example. For example, अभी आप मेरे से जैसे बात कर रहे हैं, जी और मैं आपको एज तनवीर ही कंसिडर कर रही हूँ, 17 year old boy। जी मैम और मैं आपको जब ये सीधा बोल दूं कि आई थिंक यू आर नॉट डूइंग राइट, you see you are okay just ruining your career, and this is not the right way to go about। पेरेंट्स हैं वो आपको उनका कहना मानना चाहिए, राइट। so it is और something like व्हाट इफ that you are बच्चा, not passing it is something like that you are not passing a judgment in the form of a question. राइट 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 राइट, Okay एग्जैक्टली। okay मतलब आप अगर पहले ही कन्फ्रंट कर लेंगे तो वो तो फिर खत्म हो गया केस वहीं पे, obviously वो क्लोज हो जाएगा फिर वो बच्चा कुछ बताएगा ही नहीं। एंड बोलेगा हम ही नहीं इंक्विजिटिव हैं कि हमें बच्चे का पर्सपेक्टिव पता चले, जो मम्मी बता रही है हो सकता है उससे अलग हो, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो तो एक चीज पे आए हैं जी, बच्चे हम बहुत परेशान हैं, जो नॉर्मली पेरेंट्स का यही होता है वर्ड, yeah हम बहुत परेशान हैं, बेटा है क्या करेगा आगे चल के। एंड देन अगर एक ही है तो फिर ये भी दिक्कत है कि हमारा तो एक ही बेटा है और ये कुछ करेगा नहीं, पापा इसके लॉयर हैं, वो चाहते हैं ये भी लॉ करे, आगे कुछ जिंदगी में बने। तो yeah ये 24 घंटे बच्चा सुन सुन के पक जाता है कि मेरे क्या These are गलती है the मेरी। helicopter parents basically. Helicopter राइट राइट। parents concept. एंड the attitude, जो कंट्रोलिंग पेरेंट्स हैं, they want to control everything उनके अपने बच्चे की लाइफ में, उस yeah चीज से परे होके ही काउंसलर बिहेव करे, ताकि वो एज अ फ्रेंड उसको समझे और अपनी बात शेयर करे। right ma'am The concept of positive regard. Definitely, empathy, unconditional, rather it should be unconditional positive regard. No yeah matter आप जर्नलिज्म करें, आप लॉयर बने, आप टैटू आर्टिस्ट बने, आप कोरियोग्राफर बने, I have accepted you as you are. I mean the right real self.
तो वो Right. आप छोटे छोटे डायलॉग्स बना सकते हैं अपने हर सेशन में, लाइक से फॉर यू वांट टू गो फॉर 6 सेशंस, सो फर्स्ट सेशन कैन बी रैपो बिल्डिंग वेयर आप सिर्फ उसके साथ लाइट कन्वर्सेशन कर रहे हो. सेकंड सेशन कैन बी व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन formulating the hypothesis or discussing the real problem that the boy has come up with, right? Then in between आप बता सकते हैं कि मैंने एक सेशन उनके पेरेंट्स के साथ रखा, उनके पेरेंट्स का व्यू पॉइंट जाना, एंड देन यू रियलाइज कि उनके पेरेंट्स जो है, उनका जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो काफी हद तक नेगेटिव है. वो ओवर, एक तो होता है ओवर इन्वॉल्वमेंट भी कभी कभार गलत हो जाती है. एक होता है लजायज फेयर के दे डोंट इवन केयर अबाउट इट, जो मर्जी करे बच्चा, उसमें भी उस बच्चे को समझ ही नहीं आता, ही इज ऑलवेज कंफ्यूज्ड. Right. So you can, it is up to you कि आप ओवर प्रोटेक्शन बताना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं कि पेरेंट्स बहुत डेमोक्रेटिकली उसके साथ हैंडल कर रहे हैं, लेकिन बच्चे का वो अपना जो नजरिया है वो रख नहीं पा रहा है, पेरेंट्स बहुत ज्यादा अकोमोडेटिव है या बिल्कुल नहीं है. तो आप बीच बीच में उन पेरेंट्स के साथ किया हुआ सेशन भी बता सकते हैं. देन थर्ड सेशन कैन बी वेयर यू आर वर्किंग आउट द स्ट्रैटेजीज, राइट? सेकंड में आप बता सकते हैं आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम एंड देन असेसिंग दैट विद द हेल्प ऑफ टूल्स, जैसे कि आपने वोकेशनल इंटरेस्ट रेकॉर्ड यूज किया या आपने कोई एप्टीट्यूड टेस्ट लगाया, एंड देन यू हैव कम अप विद कि बच्चे का तो लिटरेचर में भी इंटरेस्ट है. लेट्स से मैं बिल्कुल डिफरेंट लेके जा रही हूँ आउटलुक, कि बच्चा जर्नलिज्म की बात कर रहा है बट यू वर एबल टू मेक आउट कि वो लिटरेचर में बहुत अच्छा है. और जब वो आपसे बात करता है तो वो डिफरेंट अपने वोकैब में बहुत हाई है, उसका वर्बल एबिलिटी बहुत अच्छा है, फ्लुएंसी बहुत अच्छी है, वेल रेड लगता है, और मैनरिज्म्स की आप बात कर सकते हैं. मतलब ये टोटली आपका आउटलुक होगा कि आप, जैसे कई बार होता है ना हमारे फैमिली में कोई ऐसा केस होता है रिलेटेड, राइट? तो यू विल गेट एन एज कि आप इसमें मैक्सिमम जैसे भी इसको ब्यूटिफाई करना चाहते हैं केस को आप कर सकते हैं. मुझे ऐसा लगता है 5 से 6 सेशंस आप दिखा सकते हैं अपने काउंसलिंग के, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने लिखा यही है, हाइपोथेटिकल केस है और मदर लेके आई है काउंसलिंग एंड गाइडेंस के लिए, एंड देन यू हैव टू राइट इट इन योर फाइल इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट. बस आई थिंक काउंसलिंग ही आपने दिखानी है इसमें. गाइडेंस में ऑफ कोर्स गाइडेंस इज लाइक समथिंग रिलेटेड टू एजुकेशन. सो देयर अगर आपको लगता है लिटरेचर में है वो अच्छा बच्चा, या स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है और स्पोर्ट्स में वो शूटिंग में है, लेट्स सपोज, है ना, यू कैन टॉक अबाउट द एग्रेशन लेवल. ऑफ कोर्स ही इज फ्रस्ट्रेटेड, ही इज ट्राइंग, ही इज सो मच इन्वॉल्व्ड इन मेडिटेशन, व्हाई इज ही डूइंग इट? आप मेडिटेशन पे उसकी कन्वर्सेशन दिखा सकते हो कि वो अपना ओपिनियन क्या रख रहा है, कि वो क्यों मेडिटेशन कर रहा है, इज ही रियली डाइवर्टिंग, वो एक्चुअल में नजर आ भी रहा है इफेक्ट, या वो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ कि मैं डाइवर्ट कर सकूं खुद को, या रियली ही इज वर्किंग टू इम्प्रूव हिज इम्प्रोवाइज हिज कंसंट्रेशन लेवल, या फिर वो चाहे सोशल मीडिया पे जैसे फॉलो कर रहा है उसके इन्फ्लुएंस में आकर वो काम कर रहा हो. बिल्कुल ऑब्जर्वेशन लर्निंग, रोल मॉडल बैकग्रा की हम यहाँ पे बता सकते हैं कि मे बी वो सिर्फ रोल मॉडल है, सेलिब्रिटी कर रहा है तो वो उसको कंसिडर कर रहा है, या he really wants to work on his own self. कभी कभार मुझे लगता है एनलाइटनमेंट बच्चों में जल्दी आ जाती है देन पेरेंट्स में. वेरी ट्रू. तो ये आप सब चीजें इसमें डिस्कस कर सकते हैं. अंडरस्टूड मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस. Anyone else, please? You can all come up with your questions. Hello, ma'am. जी. Yeah, ma'am. Just like you told that it has to be like session wise. Like first session can be rapport building, and then second session can be like with parents. What is their perspective? And after that, problem identification. Then the tests and all to identify in which like particular area the child has interest. And after that, those measures that we want to suggest to the Tanveer and the parents. Right. Strategy. जी. Intervention जिनको हम बोलेंगे. Right. Yeah. So ma'am, like it has to be in the verbatim thing, right? Just like how we are talking to them and then they are responding and what. Because this is what I said कि that in between आप dialogue delivery दिखा सकते हैं. Right. पूरा पैराग्राफ जो आप सेशन लगा रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, आप उसको टोटल वर्बैटम में नहीं कर सकते, बट देन यू कैन शो अ ग्लिम्स ऑफ योर डायलॉग डिलीवरी जो आप कर रहे हैं.
जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट चीज है, व्हेन यू आर डिस्कसिंग द स्ट्रेटजीज एंड बच्चा इज रिफ्यूटिंग, ही डजंट रियली वांट टू गो फॉर अ टाइम टेबल और अ शेड्यूल दैट यू हैव प्लान्ड फॉर, सो हाउ डिड यू मैनेज कि बच्चा उस चीज को अंडरस्टैंड कर रहा है? तो कुछ कुछ चीजें आप वो अपने डायलॉग डिलीवरी में दिखा सकते हैं, अदरवाइज आप उसको सिंपल पैराफ्रेज कर सकते हैं कि थर्ड सेशन में हमने स्ट्रैटेजीज डिस्कस करी विद ड्यू कंसेंट ऑफ द बॉय एंड एक स्केड्यूल बना के दिया जो कि वो फॉलो कर रहा था, एंड देन चौथे में यू सॉ सम पॉजिटिव चेंजेस, और आप पेरेंट्स का भी बता सकते हैं। तो मतलब हर सेशन में एग्जैक्ट वो बैटम की जरूरत नहीं है, बट हम ऑफ कोर्स जब वो बैटम बीच में थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो वो थोड़ा रियल लगेगा केस। Okay. And ma'am, we need to close the case as in like in the end the final thing, or we need to leave it like open ended? नहीं, उसका बिल्कुल आप बता सकते हैं कि एक स्टेज पे बच्चे को आप क्लियर कर रहे हैं कि आप धीरे धीरे, जैसे इफ यू हैव सीन दैट मूवी, आई थिंक आलिया भट्ट की जो आई थी, लव यू जिंदगी, डियर जिंदगी, डियर जिंदगी। ओके, यस यस मैम। हेलो हेलो मैम। Wait, ma'am, I think she's attending one call. Okay, fine. प्लीज थोड़ी देर तक वेट करें, मैं दोबारा ज्वाइन करेंगे। कल आपका डिसीजन का स्तर रहेगा, तो आप लोग सभी अपने प्रश्न उत्तर अच्छी तरीके से लिख के नोट करके लेके आए, जिससे कि आप लोग के जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर रहें। ओके सर। सर रिपीट कीजिए, आपने क्या कहा? कल आप लोगों का डाउट्स क्लियर करने का आपका सेशन है, तो कल आप अपने सभी पर्सन जो डाउट्स हैं उनको नोट कर लें, और कल अपने टीचर के साथ अच्छी तरीके से उनकी चर्चा करनी है, अच्छी तरीके से। जी हेलो। जी मैम, अभिनंदन है आपका दोबारा से। सॉरी सर, बीच बीच में कॉल्स आ जाती है, कभी कभार इग्नोर नहीं कर पाती मैं ये कॉल। जी सरिता जी, आई वाज सेइंग दैट यस ऑफ कोर्स केस को आपने क्लोज करना है, जरूरी नहीं है 6 सेशंस में ही करना है। वही बात है कि अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा और ऐड करना चाहते हैं कंटेंट, तो आप लेके जा सकते हैं, आप दिखा सकते हैं कि अभी फॉर्मुलेशन पे आप हैं, 6-7 बता सकते हैं आप सेशंस इसमें, बट देन इम्पोर्टेंट है कि आप इसको केस को क्लोज जरूर करें। ओके। एंड जरूरी नहीं है कि आप ये कहें कि फाइनली बच्चा डिसाइडेड टू गो फॉर लॉ और जर्नलिज्म। हमारा काम उसको मनवाने का नहीं है, हमारा कंसर्न इज कि वो खुद को अंडरस्टैंड करते हुए अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करे और एक अपने लिए राइट डायरेक्शन जो उसको लगता है उसके ऊपर वो वर्क कर सके। यस मैम, आई सिंपली वांट टू आस्क अबाउट दैट ओनली कि उसको हमने सिर्फ कुछ ऑप्शंस देने हैं इन द एंड, लाइक दिस इज इन दिस वे, लाइक दीज आर द थिंग्स, नाउ यू हैव टू टेक डिसीजंस ऑन योर ओन टाइप्स, और वी हैव टू लाइक फाइनल। राइट, इवन आप ये भी दिखा सकते हैं कि पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग आप बता सकते हैं कि पेरेंट्स पहले से थोड़े ज्यादा और एकोमोडेटिव हो गए, कि दे रियलाइज कि उनको भी बच्चों के साथ किस तरह से इन्वॉल्व होना है, डिसीजंस को थोपना नहीं है। तो बट ये नहीं है कि हमने उसको मना लिया लॉ करने के लिए या जर्नलिज्म करने के लिए। एग्जैक्टली मैम। ओके, थैंक यू जी। सर आई गेस अब किसी को कोई परेशानी नहीं है, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ।
ठीक है मैम, धन्यवाद आपका। अगर अभी भी किसी का पर्सन शेष है तो वो मैम से चर्चा कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आज का ये सेशन है इसको क्लोज करते हैं। जी। एनीवन? नो। तो थैंक यू मैम। Okay, sir. All right, sir. Thank you. Have a good day, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir.